We are on chapter number 6, My Childhood. So we all know this chapter is about who? This chapter is about Dr. APJ Abdul Kalam and his childhood. As the title suggests us that it is about the childhood and childhood of who? Childhood of Mr. APJ Abdul Kalam. Okay, and APJ Abdul Kalam wrote his autobiography Wings of Fire, and this is an extract. This chapter is an extract from his autobiography Wings of Fire. Okay, so let's continue with the chapter. Yeah, so what had happened in the chapter till now? क्या हुआ है अब तक? Dr. Kalam is explaining about his childhood. He's saying that he belonged to a Tamil family who lived in Rameshwaram. के अंदर एक रामेश्वरम के अंदर एक छोटा गांव था, उसमें वो लोग रहते थे. And it was a part of Madras then. And his family was not well to do. It was a middle class family. So, but what was special about his family, that although they did not have much power, much education, they did not have much wealth, ज़्यादा money नहीं था, ज़्यादा पैसा नहीं था, but फिर भी what his family used to do, they used to feed people. उनके घर पे बहुत लोग आते थे और बहुत लोग खाना खा के जाते थे. जितने लोग उनके टोटल घर में नहीं थे, उससे ज़्यादा लोग खाना खा के जाते थे. Okay, so that was special about this family. Although they were poor, they could not feed so many people, but still they used to do that. Okay, फिर भी वो इतने लोगों को खाना खिलाते थे. Okay, so but his family was okay, इतना बहुत ज्यादा ही poverty नहीं थी, but they Dr. Kalam was emotionally and financially okay. He was अच्छा खासा चल रहा था उनकी life. Now what happened? The Second World War broke out. Children, my screen is visible to you. Children, just give me a thumbs up if the screen is visible to you. Everyone, just give me a thumbs up if the screen is visible and my voice is audible. I just got a message. Okay. So now what happens? Second World War broke out. Okay, so there were two wars, First World War and a Second World War. So Second World War broke out, and it broke out when Dr. Kalam was 8 years old. वो 8 साल के थे तब Second World War हुआ. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind trees erupted in the market. और suddenly क्या हुआ? डिमांड फॉर टैमरिन ट्रीज, इमली के बीजों की डिमांड जो थी वो मार्केट में एकदम से बढ़ गई. क्या रीजंस थे? डॉक्टर कलाम डिड नॉट नो. उनको नहीं पता था कि किस रीजंस की वजह से ऐसा हुआ कि एकदम से इमली के बीजों की मांग बढ़ गई है. बट सडनली द नीड फॉर टैमरिन ट्रीज इट इरप्टेड इन द मार्केट. इरप्टेड मतलब एकदम से बूस्ट हो जाना. ओके, इरप्टेड, राइट डाउन द मीनिंग चिल्ड्रन. इरप्टेड मीन्स टू बूस्ट, बूस्ट हो जाना मतलब एकदम से बढ़ जाना कोई चीज. ओके, I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. So what Kalam used to do, he used to collect these seeds. He used to collect tamarind seeds. इमली के बीज इकट्ठे करते थे वो, और मॉस्क स्ट्रीट पे एक किराने की दुकान थी, एक प्रोविजन शॉप थी, वहां पे जाके बेच देते थे. सो ही यूज्ड टू अर्न सम अमाउंट फ्रॉम दैट. उससे उनको थोड़ा पैसा मिलता था. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना. So एक दिन के जो बीज इकट्ठे करते थे उनसे उनको कितना मिलता था पैसा? 1 आना मिलता था. 1 आना जो होता है, पहले आज जैसे रुपए चलते हैं, पैसे चलते हैं, पहले आना चलता था. बहुत पुरानी बात है ये. तब आना चलता था जो अराउंड आपके 5-6 पैसे के बराबर होता था. ठीक है. सो एक दिन के इमली के बीज इकट्ठे करने के उनको 1 आना अराउंड मिल जाता था. My brother-in-law, Jalaluddin, would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Okay, so what happened now? जो इनके ब्रदर इन लॉ थे, किसके? कलाम के ब्रदर इन लॉ थे, जो जीजाजी थे इनके. सो ही, जलालुद्दीन वाज हिज नेम, एंड ही यूज्ड टू टेल हिम स्टोरीज अबाउट वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा है. इनकी सारी वर्ल्ड वॉर की स्टोरीज जो थी वो उनको पूरे टाइम बताते थे, और जो वर्ल्ड वॉर में जो इंसिडेंट्स हो रहे होते थे वो उनको बताते थे. ही वाज अ किड देन, 8 years old, right? Very small. And he used to find out the stories, the news about world war in the local newspaper, in the headlines. And the local newspaper's name was Dinamani. Okay, Dinamani नाम का न्यूज़पेपर था. उसके अंदर वो रोज अपनी जो न्यूज होती थी वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड वो ढूंढते थे.
Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. अब उनका जो एरिया था, डॉक्टर कलाम का जो एरिया था, it was isolated. एकदम isolated मतलब isolated, please mark down. Isolated का मतलब सबसे अलग, सबसे कनेक्शन नहीं था उनका, अलग से ही एरिया था उनका जो एरिया था. एंड इट वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. सो इसलिए उनके ऊपर वॉर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था. किसी से जुड़े हुए होते, किसी से कनेक्टेड होते, किसी बड़े एरिया के पास में होते, तो फिर भी उनके ऊपर वॉर का इफेक्ट आ रहा होता. लेकिन सिंस दे वर आइसोलेटेड, सो उनको कोई इशू नहीं हुआ वॉर की वजह से. बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू join the allied forces and something like a state of emergency was declared. But soon एकदम से क्या हुआ, इंडिया को फोर्स किया गया एलिड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए. एलिड फोर्सेस मतलब कौन सी फोर्सेस? यूके, मतलब कि आपका रशिया और यूएसए की जो फोर्स आर्मीज थी, इंडिया को भी ज्वाइन किया, फोर्स किया गया कि आपको भी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट लेना करना होगा. चाहे आप यूके की आर्मी ज्वाइन करो, रशिया की आर्मी ज्वाइन करो या अमेरिका की आर्मी ज्वाइन करो, पर आपको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. इंडिया को फोर्स किया गया एलिड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए और इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई. पहले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था. बट अब जब इंडिया को भी फोर्स किया गया ज्वाइन करने के लिए, तब अब जो है इमरजेंसी जैसी स्टेट आ गई. इमरजेंसी जैसे कि लॉकडाउन, मतलब बिल्कुल सब जगह शट डाउन हो रखा है, लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा है, इस टाइप की इमरजेंसी डिक्लेयर की गई. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. अब पहला जो कैजुअलिटी आई थी, कैजुअलिटी मतलब किसी को वर्ल्ड वॉर की वजह से कोई मरा है, कोई किसी को घायल हुआ है. फर्स्ट कैजुअलिटी, इट केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. अब रामेश्वरम स्टेशन पे एक ट्रेन हॉल्ट हुआ. ट्रेन हॉल्ट मतलब कि ट्रेन रुक गई और उसमें violence हुआ. So that was the first casualty of Second World War. Then the newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. Ab newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. अब क्या होता था, न्यूज़पेपर्स जो थे उनको बंडल करके और रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो रामेश्वरम रोड था, दो स्टेशन है रामेश्वरम और धनुषकोडी, इनको ज्वाइन करने वाला स्टेशन रोड था रामेश्वरम रोड, इनके अंदर न्यूज़पेपर को बंडल करके और फेंकना होता था. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. So अब ये काम कौन करता था? अब्दुल कलाम के ही cousin थे Samsuddin, and he used to do that. What did he used to do? He used to distribute newspapers. ये newspaper distribute करते थे, ठीक है. अब और काम बढ़ गया उनका, तो उनको एक और हेल्पिंग हैंड चाहिए था. एक हेल्पिंग हैंड मतलब कि जो इनकी मदद कर सके न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने में, और ये जो बंडल्स आते हैं उनको कैच कर सके, ठीक है. तो अल्टीमेटली वो काम किसने किया? अब्दुल कलाम ने क्या किया कि बंडल्स जो थे न्यूज़पेपर के वो फेंके जाते थे, उनको कैच करने रहते थे और वो डिस्ट्रीब्यूट करने रहते थे. शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस. अब शमसुद्दीन की वजह से उनको उनकी पहली सैलरी मिली, पहली इनकम उनकी इसकी वजह से हुई, ठीक है. पहली वेजेस, पहली जो कमाई हुई उनकी वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से हुई. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. Half a century later, आज 50 साल बाद भी, ये डॉक्टर कलाम इज राइटिंग इन हिज ओन ऑटोबायोग्राफी, ही इज राइटिंग, एंड उसके अंदर वो मेंशन कर रहे हैं कि आज 50 साल बाद भी वो जो दिन था, वो जो टाइम था कि जब मैं अपनी पहला मुझे कमाई हुई थी, आज भी मैं उसको सेंस ऑफ प्राइड से लेता हूँ. आज भी मैं उसको बहुत प्राउड से बोलता हूँ कि मैंने अपना पैसा कमाया था उस वक्त पे, इतना छोटा था तब भी, और ऐसे टाइम के अंदर भी मैं अपना पैसा कमा रहा था. एंड आई फील सो प्राउड अबाउट दैट मनी कि उस टाइम मैंने अपना पैसा कमाया था, एंड मुझे उसके लिए बहुत गर्व होता है. एवरी चाइल्ड इज बोर्न with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment. अब अब्दुल कलाम इज गिविंग अ जनरल थॉट कि हर बच्चा जो होता है, एवरी चाइल्ड
इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसके अंदर कुछ ना कुछ नेचुरल प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ नेचुरल टैलेंट होता है हर बच्चे के अंदर, इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, हर बच्चा जो है, जो इनहेरिट करके लाता है, भगवान से लेके आता है, जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी, एक स्पेशल क्वालिटी होती ही होती है। और जिस सोशो इकोनॉमिक मतलब कि जिस सोसाइटी में, जिस फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ वो पैदा होता है, वो भी उसके साथ फर्क पड़ता है। और जो इमोशनल एनवायरनमेंट होता है, इमोशनल एनवायरनमेंट मतलब आपको कोई सपोर्ट करने वाला हो, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो, इस चीजों का भी बहुत फर्क पड़ता है किसी भी बच्चे के ऊपर। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो अब अब्दुल कलाम अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे किससे क्या मिला, कि मेरे फादर से मुझे मिला ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, कि मुझे मेरे फादर से मिला ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन मिला मेरे फादर से। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, फादर से तो उसको मिला ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, कि काम करना है तो वो ठीक से करना है और ऑनेस्टी से करना है। और मदर से क्या मिला? गुडनेस, अच्छाई मिली। और डीप काइंडनेस, बहुत लोगों के प्रति दया और गुडनेस जो थी वो उनको उनकी मदर से मिली। एंड उनके जो 3 भाई और बहन थे उनको भी सेम चीज इनहेरिट हुई जो उनके मम्मी पापा से उनको मिली। I had 3 close friends in my childhood. Now he is talking about the friends of his childhood. उनके 3 बहुत close दोस्त थे, बचपन के दोस्त. They were Ramanatha Shastri, Arvindan and Shiv Prakasan. Okay, so he is talking about the 3 friends of his childhood, 3 very close friends of his childhood, and their names were Ramanatha Shastri, Arvindan and Shiv Prakasan. All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. अब ये जो सारे जो बच्चे थे, सारे जो तीनों लड़के थे, ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? प्लीज राइट डाउन द मीनिंग। ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो सारे रूल्स फॉलो करती हो, एकदम प्रॉपर हिंदू फैमिली, बहुत थोड़ी स्ट्रिक्ट हिंदू फैमिली, यू कैन राइट स्ट्रिक्ट, और द वंस हु फॉलो ऑल द रूल्स दे आर कॉल्ड एज ऑर्थोडॉक्स। ओके, सो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे ये तीनों लड़के। ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली का मतलब क्या हुआ कि एकदम पूजा पाठ में विश्वास रखना और इस तरीके से, ठीक है, सब कुछ सारे यज्ञ व्यज्ञ करना, इस टाइप से एकदम प्रॉपर हिंदू फैमिली थी, प्रॉपर ब्राह्मण फैमिली थी। बहुत ज्यादा जो धर्म को मानते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑर्थोडॉक्स। एज चिल्ड्रन as children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. कि हम जब बच्चे थे तो हमको कभी भी एक दूसरे में फर्क नहीं लगा कि मैं मुस्लिम हूँ या ये हिंदू है या ये ब्राह्मण है, तो उसकी वजह से वी नेवर फेल्ट द डिफरेंस अमंग अस, हमको आपस में कभी कोई डिफरेंस नहीं लगा। क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों नहीं लगा? बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। अब क्योंकि हम जैसे हमको बड़ा किया गया था, जैसे हमको सिखाया गया था, तो हमको कभी आपस में फील नहीं हुआ कि मैं मुस्लिम हूँ या वो हिंदू है तो हमें फर्क है, ये सब हमें कभी फील नहीं हुआ। In fact, Ramanatha Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri. Wait. In fact, Ramanatha Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the highest priest of Rameshwaram temple. In fact, जो रामानाथ शास्त्री था, जो इसका जो एक दोस्त था रामानाथ शास्त्री, किसके बेटे थे? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के चीफ प्रीस्ट थे, उनके जो हाईएस्ट प्रीस्ट थे, सबसे बड़े वहां के जो प्रीस्ट थे। प्रीस्ट मतलब कि वहां के जो महात्मा गुरु टाइप के जो थे, ठीक है, वहां के पंडित थे। कौन? उनके जो दोस्त थे रामानाथ शास्त्री के जो पापा थे वो रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पंडित थे। फिर भी उन दोनों में कभी डिफरेंस नहीं किया गया हिंदू या मुस्लिम होने का। Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. So later on जो अब्दुल कलाम के जो दोस्त थे रामानंद शास्त्री, उन्होंने उनको वो प्रीस्टहुड मिली, मतलब अब वो चीफ पंडित हो गए रामेश्वरम टेम्पल के। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. और अरविंदन जो है, जो दूसरे दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, what did he do? वो जो pilgrims जो होते हैं, pilgrims, write down the meaning children. Pilgrims मतलब कहीं
जो ट्रैवल करने वाले, पिलग्रिम्स मतलब जो धर्म के लिए ट्रैवल करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज पिलग्रिम, तीर्थयात्री जिसे कहते हैं। Pilgrims, write down the meaning, तीर्थयात्री. Okay, so Arvindan went into the business of arranging transport for pilgrims. अब जो तीर्थयात्रियों के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट था, इसका जो बिजनेस था अरविंदन वो करने लगे. And Shiv Prakasan, the third one, he became a catering contractor for the Southern Railways. और शिव प्रकाशन जो है रेलवेज के अंदर जो खाना मिलता है, जो केटरिंग होती है, उसके बिजनेस के अंदर चले गए. सो ही इज टॉकिंग अबाउट द क्लोज थ्री फ्रेंड्स ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड हाउ दे वर, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, उनको कभी हिंदू मुस्लिम में कभी उन्होंने फर्क नहीं किया, और भले ही एकदम ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे वो, तब भी कोई फर्क नहीं किया गया. और अब उनके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ही इज एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट. During the annual Sri Sitaram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha. Okay, so अब हर साल क्या होता था, जैसे कि आपने देखा मुंबई में गणपति की वो निकालते सवारी, गणपति की जो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां निकालते हैं, पूरा मुंबई ब्लॉक रहता है गणेश चतुर्थी के टाइम पे. सिमिलरली रामेश्वरम में जहाँ पे अब्दुल कलाम रहते थे, वहां पे श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी. मतलब कि भगवान की मूर्ति को, जैसे यहाँ पे एक आपको दी गई है, ठीक है, एक्सप्लेन किया गया है पिक्चर में, कि भगवान की मूर्ति को ले जाते थे और उनको भी जैसे नदी में बहाते हैं, समुद्र में बहाते, वैसे बहाते थे सीताराम कल्याणम सेरेमनी के टाइम. तो इस टाइम जब क्या जो अब्दुल कलाम की फैमिली थी वो क्या करते थे, दे यूज टू अरेंज बोट्स. ठीक है, वो एक बोट्स अरेंज करते थे. बोट्स जो थे वो उनकी बोट के अंदर भगवान को लेके जाते थे और उनको मैरिज साइट तक लेके जाते थे. सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वाज नियर आवर हाउस. ठीक है, तो अब ये जो साइट थी ये कहाँ थी, पॉन्ड के बीच में थी. आपको एक आप बैंक पे हो, बैंक से आपको पॉन्ड के बीच में जाना है, मतलब इसके पॉन्ड के बीच में जाना है, तालाब के बीच में जाना है. तो वहां से वहां जाने तक के लिए जो बोट्स थी, ये बोट्स कौन अरेंज करता था, अब्दुल कलाम की फैमिली अरेंज करती थी. और इन बोट्स में क्या रख के ले जाते थे, आप भगवान को रख के ले जाते थे यहाँ तक पूजा के लिए. सब लोग गाते बजाते हुए सब लोग पूजा के लिए लेके जाते थे इन बोट्स के अंदर भगवान को रख के. Events from the Ramayana and from my life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. और रात को जब सोते वक्त अब्दुल कलाम की मम्मी दादी ये सब उनको क्या सुनाते थे, रामायण की स्टोरीज सुनाते थे, या फिर जो मोहम्मद हैं, मोहम्मद प्रोफेट जो हैं, उनकी स्टोरीज सुनाते थे. कहने का मतलब क्या है, ऑल्दो देवर इतने पुराने टाइम्स की बात है, पर हिंदू मुस्लिम्स का कोई डिफरेंस नहीं था. जैसे आज इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंस होता है, कि इतने पुराने टाइम्स की बात है, एकदम ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, इतने एजुकेटेड भी नहीं थे, फिर भी वो हिंदू मुस्लिम्स में कोई फर्क नहीं करते थे. इनफैक्ट अब्दुल कलाम को एक मुस्लिम होने के बाद भी उनकी मम्मी दादी उनको रामायण की स्टोरी सुनाते थे, उनको जो मोहम्मद हैं, प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनकी स्टोरी सुनाते थे. One day, when I was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. So now he's explaining about the his schooling part. Okay, the schooling part of his childhood. So once when he was in 5th class, 5th standard में थे, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, तो एक नई टीचर आए उनकी क्लास में. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri. Okay, so always Abdul Kalam was a Muslim, so he used to wear a cap. जो Muslims जैसे cap पहनते हैं white color की, तो he also used to wear a cap, जिसकी वजह से पता चलता था कि वो मुस्लिम है. जो मुस्लिम्स की एक स्पेसिफिक व्हाइट कलर की कैप रहती है वो अब्दुल कलाम पहनते थे. एंड ही ऑलवेज सैट इन द फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो में बैठते थे अपने दोस्तों के साथ, रामानंद शास्त्री के साथ में बैठते थे. रामानंद शास्त्री कौन, जो एक ऑर्थोडॉक्स पंडित थे, इनके साथ बैठते थे. एंड APJ Abdul Kalam, he used to wear a cap, and Ramananda Shastri, he used to wear a sacred thread. आपने देखा है ब्राह्मण्स को, पंडित्स को एक व्हाइट कलर का धागा वो अपने चेस्ट पे पहनते हैं. तो उसकी वजह से पता चलता था कि वो ब्राह्मण है, और जो कैप जो अब्दुल कलाम पहनते थे उसकी वजह से पता चलता था कि वो एक मुस्लिम है.
The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. अब जो नया टीचर जो आया था इनके स्कूल में, उसको ये बात नहीं पच रही थी कि एक मुस्लिम और एक हिंदू ब्राह्मण दोनों साथ में कैसे बैठे हैं। ये नए टीचर को ये नहीं जम रहा था कि इन दोनों को साथ कैसे बिठाया हुआ है। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. तो अब एपीजे अब्दुल कलाम को बोला गया कि आप पीछे जाके बैठ जाओ, आप लास्ट में जाके बैठ जाओ, और जो रामानंद शास्त्री हैं, जो एक ब्राह्मण है, वो फ्रंट में आके बैठेंगे। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। सो अब्दुल कलाम को भी बहुत बुरा लगा, वो भी बहुत सैड हो गए कि अपने दोस्त के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, और रामानंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. अब रामानंद शास्त्री को भी बहुत खराब लग रहा था कि मेरा जो दोस्त है वो लास्ट रो में बैठा है, उसको मेरी वजह से लास्ट रो में बिठाया गया है, तो he was feeling very very sad. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression of me. So now Ramananda Shastri started weeping. His friend, his Brahmin friend, he started weeping because APJ Abdul Kalam was shifted to the last row because of him. कि उन हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस की वजह से अब्दुल कलाम को लास्ट रो में भेज दिया गया था, एंड दैट्स व्हाई रामानंद शास्त्री, हिज फ्रेंड, ही स्टार्टेड वीपिंग एंड दैट मेड हिम वेरी सैड। जो अब्दुल कलाम के दिमाग में आज भी वो इंप्रेशन है कि मेरा दोस्त हिंदू मुस्लिम, उसको कुछ नहीं पता, ये सब उसने कभी बातें आज तक हमको सिखाई ही नहीं गई है, तो उनके दिमाग में भी नहीं है कि हिंदू अलग होता है या मुस्लिम अलग होता है। एंड दैट इम्प्रेशन, वो जो इमेज थी कि मेरा दोस्त मेरे लिए रो रहा है, रामानंद शास्त्री, तो दैट इमेज लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। उसका एक मेरे पे बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत इम्प्रेशन पड़ा। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट्स। तो स्कूल के बाद दोनों घर गए, अब्दुल कलाम भी और रामानंदा भी। तो अब्दुल कलाम ने भी अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और रामानंद शास्त्री ने भी अपने पेरेंट्स को बताया कि हमारे साथ आज ऐसा ऐसा हुआ, मेरे दोस्त अब्दुल कलाम को he was made to sit in the last bench. Lakshman Shastri summoned the teacher. So Lakshman Shastri is the father of Ramananda Shastri, who is the chief priest in Rameshwaram temple. So Lakshman Shastri summoned the teacher, वो आए और उन्होंने टीचर को समन किया। समन क्या मतलब, उनको चेताया कि आपने ऐसा क्यों किया। And in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. और उन्होंने टीचर को बताया कि आपको ये जो जहर है, कैसा जहर, सोशल इनइक्वालिटी का, कि ब्राह्मण ऊपर होते हैं, मुस्लिम नीचे होते हैं, ये सब जो जहर है, ये आपको ये छोटे छोटे बच्चों के इनोसेंट दिमाग में नहीं फैलाना चाहिए। जो मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, इनोसेंट मतलब मासूम बच्चे, ठीक है, सो इनोसेंट बच्चों के दिमाग में आपको ये जहर जो है सोशल इनइक्वालिटी का, सोशल इनइक्वालिटी मतलब आप समझते हो कि आपको ऐसा बताया गया कि जो एक कास्ट है वो ऊपर है, एक कास्ट है वो नीचे है, एक कास्ट इनसे ऊपर होती है, नीचे होती है। तो ये जो इनइक्वालिटी क्रिएट कर रखी है लोगों के दिमाग के अंदर, लोगों ने ही क्रिएट कर रखी है, दैट पॉइजन, दैट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग विच इज स्प्रेड अमंग द सोसाइटी। जो सोसाइटी के अंदर है कि एक कास्ट जो है वो बहुत बड़ी होती है, ये कास्ट होती है वो बहुत नीचे होती है, इनको छूना नहीं है, ऐसी ऐसी बातें हम लोगों के दिमाग में किसने भरी हुई है, सोसाइटी ने ही भरी हुई है ये सारी चीजें, विच इज बैड, वेरी वेरी बैड। एंड यहाँ पर जो रामानंद शास्त्री के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने टीचर को बोला कि आपको ये बच्चों के दिमाग में नहीं भरना चाहिए, वो छोटे इनोसेंट बच्चे हैं और आपको ये सब उनके दिमाग में नहीं डालना चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. तो उन्होंने bluntly टीचर को बोला कि या तो आप apologize करें। apologize का मतलब होता है, टीचर children note down the meaning, apologize का मतलब होता है माफी मांगना, ओके। तो उन्होंने सिंपली बोला कि या तो आप माफी मांगो या फिर स्कूल छोड़ के चले जाओ। अगर आप ऐसा हरकतें करोगे तो यहाँ से स्कूल छोड़ के चले जाओ या फिर आप माफी मांगो। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. इसकी वजह से टीचर को तो रिग्रेट हुआ ही, उसको तो खराब लगा ही, बट जो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन था, ऐसा नहीं कि यार यार ठीक है, छोटे बच्चे ही तो हैं, इनमें क्या ही फर्क पड़ रहा है, नो। सो द टीचर गॉट वेरी वेरी रिफॉर्म्ड कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम का फर्क डाला, ये मेरी गलती है। सो लक्ष्मण शास्त्री की वजह से जो
रामानंद शास्त्री के फादर थे, उनकी वजह से ये जो टीचर था इसको समझ में आया कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, छोटे बच्चों के दिमाग में ये सब मुझे जहर नहीं डालना चाहिए था. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. Okay. On the whole, ज्यादातर क्या होता था, जो रामेश्वरम जो इनके छोटी सी सोसाइटी थी, इट वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. बहुत रिजिड थी. यहाँ पे ऐसे लोगों का सेग्रीगेशन नहीं किया जाता था कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग, ये सब नहीं किया जाता था. However, my science teacher Shiv Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. ठीक है, लेकिन फिर भी जो इनके साइंस टीचर थे, अब्दुल कलाम के साइंस टीचर थे, his name was Shiv Subramania Iyer. Okay, there are so many Madrasi and names, so please try to cope up with that. थोड़े लंबे लंबे नाम है जैसे कि साउथ इंडियन नेम्स होते हैं. सो जो इनके साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे. वो भी एक स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. और उनकी वाइफ बहुत ही कंजर्वेटिव थी. कंजर्वेटिव का मतलब, चिल्ड्रन प्लीज नोट डाउन द मीनिंग. कंजर्वेटिव मतलब पुराने ख्यालों की, पुराने ख्यालात वाली थी. उनकी वाइफ थोड़ी पुराने ख्यालात की थी कि नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम अलग अलग होते हैं, अलग रहना चाहिए, ये सब सोचने वाली उनकी वाइफ थी. Was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. अब उनके जो हस्बैंड है, मतलब कि जो इनके साइंस टीचर हैं, वो तो अपना बेस्ट ट्राई करते थे कि लोगों को अलग अलग ना रखें, हिंदू मुस्लिम अलग अलग ना रखें, और लोग आपस में ताकि ढंग से मिल पाए. अगर लोगों के बीच में कास्ट का गैप होगा, अगर लोगों के मन में फीलिंग होगी कि ये बड़े कास्ट का है, ये छोटे कास्ट का है, तो वो आपस में मिल नहीं पाएंगे, हमेशा उनके बीच में भेदभाव रहेगा. सो द साइंस टीचर ही यूज्ड टू ब्रेक दैट, कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लोगों के बीच में कोई कास्ट बैरियर्स नहीं है, कोई गैप्स नहीं है. लेकिन उनकी वाइफ जो थी वो उल्टे ख्यालों की थी, वो पुराने ख्यालों की थी. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities. So ये जो साइंस टीचर थे वो अब्दुल कलाम को बोलते थे कि कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मैं चाहता हूं कि तुम डेवलप करो ताकि जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं, जो बड़े बड़े सिटीज के हाईली एजुकेटेड पीपल हैं, उनके साथ तुम बराबरी रख सको, उनके साथ तुम बराबर में खड़े हो सको. सो हु encouraged Abdul Kalam, his science teacher encouraged him that you should develop, तुमको डेवलप करना चाहिए ताकि तुम हाईली एजुकेटेड लोगों की लाइन में खड़े हो सको, उनके साथ खड़े हो सको. One day he invited me to his home for a meal. So one day the science teacher invited Abdul Kalam for a meal. खाने पे बुलाया अब्दुल कलाम को. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. अब उनकी वाइफ जो थी पुराने ख्यालातों की, उनका दिमाग हिल गया कि मेरे किचन में एक मुस्लिम लड़का कैसे खाना खाएगा. ये सब उनकी थॉट थी. तो उनको लगा कि मेरे किचन में तो मुस्लिम लड़के को मैं खाना नहीं खिलाऊंगी. She refused to serve me in her kitchen. उन्होंने मना कर दिया कि मेरे किचन में मैं किसी मुस्लिम लड़के को एंटर नहीं करने दूंगी और खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाने दूंगी. Shiv Subramanya Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife. अब वो जो उसके साइंस टीचर थे, उन्होंने क्या किया, वो अपनी वाइफ से एंग्री नहीं हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया उल्टा, he served me with his own hands. उन्होंने अपने खुद के हाथ से खाना रखा कलाम को, and sat down beside me to eat his meal. और उसके पास साथ में बैठे खाना खाने के लिए. एक जो उनकी वाइफ थी कि मैं तो बिल्कुल ही खाना नहीं खिलाऊंगी, उन्होंने कैसे बिहेव किया, ऐसा नहीं कि लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, सिंपली उन्होंने अब्दुल कलाम को खुद के अपने हाथों से खाना रखा और उनको अपने साथ में खाने बिठाया. सो हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम द किचन डोर. अब उनकी वाइफ जो थी किचन के डोर पे खड़े होकर ये सब देख रही थी कि उनके हाथ से खाना रख रहे हैं मुस्लिम बॉय को, उसके साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. So भले ही आपने हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस क्रिएट कर रखे हो, लेकिन दोनों एक ही तरीके से खाना खा रहे थे. There was no difference in how they were eating, how they were drinking water after that, or how they were cleaning the floor after eating food. कि उसने देखा कि इनके खाना खाने के तरीके में भी कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ मेरे दिमाग में जो है मैंने डिफरेंस क्रिएट कर रखा है, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस
between a Hindu and a Muslim. जैसे वो खाना खा रहा था जैसे वैसे भी वही खाना खा रहा था, जैसे वो पानी पी रहे थे वैसे वही पानी पी रहे थे, और जैसे वो फ्लोर क्लीन कर रहे थे खाना खाने के बाद, जैसे जो एरिया है वो साफ करना, वैसे भी वही फ्लोर साफ कर रहा था. When I was leaving his house, Shiv Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. So अब जब वो घर से जा रहे थे तो शिव सुब्रमण्यम को ने उनको अगले वीकेंड भी डिनर पे बुलाया. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, अब अब्दुल कलाम हिचकिचाए कि आपकी वाइफ को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं आ रहा हूँ घर पे तो उससे, तो अब्दुल कलाम थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम अपसेट मत हो. एंड व्हाट डिड ही से? Once you decide to change the system, such problems have to be confronted. कि अगर तुम डिसाइड करोगे कि मुझे सिस्टम को बदलना है, मुझे सिस्टम को चेंज करना है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो तुमको फेस करनी पड़ेगी. कि इससे डरो मत. अगर आज तुम डर के कि मेरी वाइफ को प्रॉब्लम हो रही है तो घर पे खाना खाने आने से, और अगर तुम अगली बार नहीं आए डर के, तो दैट वुड नॉट बी करेक्ट, वो सही नहीं होगा. लेकिन तुम बिना डरे फिर भी तुम आओगे अगर खाना खाने, ऐसी प्रॉब्लम्स तुमको फेस करनी पड़ेंगी अगर तुम सिस्टम को चेंज करना चाहते हो. ये बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और ये तुम्हारे सामने आएंगी. When I visited his house the next week, Shim Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food within his own hands. So next time जब वो अपने साइंस टीचर के घर पे गया तो उनकी वाइफ ने खुद ने उनको किचन के अंदर बुलाया और उनको अपने हाथों से खाना सर्व किया. So it means that चाहे आदमी कितना भी कंजर्वेटिव हो, कितना भी अपनी कि मैं तो अपनी थिंकिंग नहीं चेंज करूंगा, लेकिन इफ यू डिसाइड दैट यू आर गोइंग टू चेंज द सिस्टम, इफ यू डिसाइड दैट यू आर गोइंग टू डू द चेंजेस, यू आर गोइंग टू ब्रिंग द चेंजेस इन द सिस्टम, अगर आप डिसाइड कर लो तो फिर सामने वाला भी बदल जाता है. ओके ओके चिल्ड्रन, सो वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर in the next class. Is anyone having any doubt? Anyone is having any doubt? Please tell me.